भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णावपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं ब्रह्मास्मि. So good evening everyone, and good morning for the other people, those who have joined from the other time zones, and good afternoon for the people for whom it is already afternoon. So स्वागत है आप सभी का to your day, to your questions, to your answers, and good to see that 2 hands are already raised. So let's get into it. Balaji, please unmute yourself. Pranam. So all the So- questions are coming from Gujarat today, it seems. Okay. So last 2 Sundays was absolutely marvelous experience. So I wanted to know that it's not that only during those moments of meditations and when we are there in front of you on the camera or on or offline, there are definitely aha moments, no doubt about it. But what if I or we as a family wanted to be in that state, in that fabric, in that notion throughout our entire maybe life, I would say? What would be the ultimate? Because last time it was like out of mind experience, and I'm still in that awe, cannot get rid of it, and I'm really thankful for that experience on Ganesh Chaturthi. And on that day, in the morning, I crave for laddu, and even from that day till today, every day, somewhere or other, I'm been exposed to that laddu. I was remembering my mom, she used to prepare it, a very delicious one. So, I don't know, things are literally happening the way it has to be. So, yeah, I won't take longer than that. Okay. Pranam. Okay, Dhavalji. So the question of all the people all around, like how to be in that space always. Then I would ask a question, why are you moving from that place? If you are taken to that place, you should stay in that place. Why are you moving away? So it is not my doing, it's your doing. You are moving away from the place. The place is being given every time. And then we have some people, like you see, those who have decided not to come down from that place ever. अब देखो राजन जी को देखो एक बार. So he will never come down from that place. He has decided that I'm not going to come. Okay, oh, everything that is coming, it's good enough. Like it's floating in front of me, but I'm not going to come down. Mhm. Okay. The next thing, then you say like how to be in that state throughout the life, right? Yep. And then you only said like for the past, the day I was craving for laddu, and every day the laddu is being provided to me, and some things are working. Yeah. So there are ways of understanding this. Means why we are keep on adding new things and giving new ideas or wisdom or processes or techniques or mantras, all that.
Why? Because now, first and foremost thing that you have to understand is the initial days of yours, right? Even I remember the day when we met, like we were walking back from the Shiva's home after that dinner, and while we were coming, you were asking some questions, and I said, just hold on and you see what happens. Yeah. Just sit with me for some time and you see what happens. Now, what is the transformation from that person to this person? Is there any transformation? Is there any change to that person yet? Yes, 100%. So what made you think that you have changed? And is it a change in a good way or? Definitely. I remember the first video call. I was on the road on the mobile, and my initial well-wishers or gurus asked me, like, for 20 years back, Dhawal, I'm not seeing spark in you. And I remember you said that day that we will bring that spark. And now, after few years, now I really feeling that in me. So you are not just a spark, you are a fire now, right? Okay. So see, in order to understand or be in that space, it can just happen like this for some people. And for some people, it takes a lot of practices that we are doing right now. And as you see, slowly you are moving into that place. You are moving into that space of being in that space. Now, at least you know when you are not in that space. At least you are able to catch hold of yourself, right? Earlier, it was just like sleepwalking. But now you are becoming conscious. Each and every one of you in this room, you are becoming conscious about that. Like now you are knowing, okay, why I missed it at that time. So slowly, what it becomes is it becomes a complete, just like you cannot forget to breathe. Similarly, you will come into a space with these practices constantly. And with this hitting of hammer, you see, why I said in the initial phase that it's not my doing, it's your doing. You are being taken to that place. You are moving away. And in order to not move away, you have to stay in that place. Now the question again comes back to circle one. How? Right? Yeah. How is the very simple question is how, and the very simple answer for that is be in the now. Mm-hmm. When you're asking about how, then I will always say the same thing, be in the now. Because when I am here right now, I'm watchful of everything. And when I'm watching everything, I know that if I observe all the things and I'm not involved in that, I'm there. Just now in this space right away. Just observe all the things around you without getting involved in that. Now people say, if I don't get involved, then how is it going to work? I say, create a mechanism. You don't every time go and move the clock, right? The clock moves. All that you need to is to provide a battery. And in your life, all the things will be going on. But at the same time, at least from completely sleeping to awaking to some state and slowly walking on that path that is bringing you to this space, keep on walking. Because no one knows which moment they just cross over. And when you cross over, it's done. And many of the people will be feeling like, not only you, so many people come and go as well. For them also, they forget one thing. They see like certain things are not working in the life. And then they say, this doesn't work. Right? If certain things doesn't work, they say, this doesn't work. And what they do? They miss the chance of completing the journey. How many of you played Ludo in your life? Snake and ladder? Everyone. Everyone played. You still play? Yes. Yeah, why not? You should. Why not? If you look at that snake and ladder, if we consider that
total 1 to, from that 1 to 100 is life. Let's take it as every year of life. Okay. And then you roll the dice, means कर्म करते जाते हो. कर्म का फल क्या है? Based on your karma right now or the karma that you have done earlier. So the dice is rolling because you don't have a control on the dice. But yes, there are some people, those who know how to roll the dice. They have invented a way to hold that dice in certain way and throw it, and it comes to the same number what they want. वो मैं सिखा सकता हूँ आपको. Okay. So when this is the 100 is the life, and you have the numbers of years that you are crossing by through your karma that you are doing. Now, at times you do good karma, means the dice rolled in the right place and you got a ladder. You climbed up. Okay. वो क्या हो गया? It's a boon, a blessing है. And sometimes bad karma. You roll the dice and it fall into the wrong space, into the mouth of the snake. What happens? You come down. Fall down. Yeah. Right? So doesn't it look like a life? Now, more than that, when you are in the lower cycles of life, right? There are no much snakes. There are more ladders. Don't you see in your life when you are a child, there is no much trouble. There are all people helping you. Towards the mid of your life, what happens? You see more and more snakes appear. More and more responsibilities. And ladders slowly come down. And when you are walking on this path and you are closing to your home, do you remember the last two, the 90s and the last one, the upper one and the first and the second row, 85 and 90 rows, right? How many snakes are there? Plenty. Plenty, right? What does that mean? That when you are nearing home, there will be a lot of snakes around. And all that you have to do is don't do any wrong karma there. And one major one, at the 94th block, there is one. And it rolls you down all the down to 6 or 7. Yeah. Bottom. Again, what happens? Cycle of life begins. वो क्या था? Yamraj. You didn't realize yourself, you didn't reach home, you died. And again, you came back to the same cycle of life to roll the dice again. Good karma, bad karma, good karma, bad karma, and goes on up, 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 and again if you didn't realize. But if you just see, if you cross that 94th box, It's done. Is there anything to do? Nothing, right? All that needs is just keep on rolling the dice, and one time the number comes and you just jump into the home. Yeah. So you are asking me how to jump over that 94th snake. Just keep going Keep going. with awareness in mind. Yes. Watchfulness. Because if you know, you have a count. Okay, if I put this, many people don't know. They don't count the ladders. They don't count the snake. They just roll the dice. But at times, have you seen, like, whatever you recall, the dice rolls in that way. If you have a great day on that day, you just roll it. And every time, has it happened to anyone one fine day, you roll the dice and every dice is coming as per your, whatever you call, it just falls. Everyone has gone through that, right? Everyone? That was a day, I say 6 means 6, I say 3 means 3, 2 means 2, right? That was your great day, right? That was lucky day, you call it? Yep. This is your lucky life. Today. This life. So I think consistency is the key here, whether it is in not only material or consistency, first and foremost, accept that you have already reached that. Accept this is your lucky day. Accept that this time I'm going to make home. I don't know how many ladders come, how many snakes come, but this time I have the guidance. I have the intelligence. I have the consciousness. I am aware of what I'm doing. And more than that, I know I'm just playing a game.
Yeah, with your grace. Now, if you realize all these things, will you even ask me the question like how to be there always? No, the question itself disappears. The question appears in ignorance. With the dawn of wisdom, the question itself disappears. Now, really tell me, close your eyes for a moment and tell me if you are really not that, what you want to become. If you are not already that, what you are seeking. Tell me if you are not already home. It feels like that. Yes. So who denies it? It's Me. you. Hmm. It's not even you. It's your mind who keeps on playing the game. It wants the game to go on. Hmm. But whereas you, now tell me, how can I keep you here always? Very simple. Remember the Ludo game. That there will be ladders, there will be snakes, but it's all a game. And I am not in the game. I am just watching the game being played. What happened? So that's why I asked, you should play Ludo. You should play Snake and Ladder. It is so beautiful example of your life itself. The struggles of life, the winnings of life, the tragedies of life. Right? All is there. Do you need a mantra for that? No, that game is enough to make you realize. Because whenever you feel like I have slipped, just sit for a moment, as I said. Remember the game and then close the eyes and ask, where do I really want to go? Am I already not there? And the answer shouts actually within you. चिल्ला नहीं रहा आपके अंदर, देखो. It doesn't have a voice, but yet it screams out, yes, I am home. Hmm. Then it's just like this. I remember one funny incident, Dhavalji. When I was a teenage, I was traveling in an auto, right? So there are share autos. So one auto goes from one place to the other place. So one place was that was Badambadi. It is a place called as Badambadi, and the other place is called as Chandni Chowk. Okay. सुधा जी हमारे पास भी चांदनी चौक है. ओके. तो चांदनी चौक में जाना है. So that day, every day I used to travel from here to there. And while returning, I used to take the help of one of my friend who drops me. That day, the friend was not there, and I was sitting in the auto already in Chandni Chowk. I have to go to the other side of the city, but I'm asking the auto person to take me to Chandni Chowk. Mhm. He's looking at me. I said, Chandni Chowk. उसे पक्का लगा होगा ये पहली बार आया यहाँ पे. कोई अच्छा होता तो वहां ही घुमा के 3 बार वहीं लाके खड़ा कर देता. बोला पहुंच गए तुम, जाओ चांदनी चौक. So you are doing the same thing. And there is a very funny way of looking at it as well. बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे. No. कुछ गधे थे. Some donkeys, you know. And one person kept the donkeys, trained the donkeys to do the work every single day, eat and do hard work. One fine day, the owner took the donkeys through a forest. These donkeys have never seen a river. And even in donkeys, there is a daring donkey, you know, always. Hmm.
Just like among all monkeys, there is a daring monkey. Among donkeys also, there is a daring donkey. So everyone, as it was afternoon, so the owner tied all the donkeys at one place and he rested. And this daring donkey felt thirsty. And there was no water near. So he was so thirsty that he could not stop himself. So he started searching for water. All the others said, "Hey, where are you going? Why are you going? You stay here. That fellow will get up and beat you up, you know." He says, "I don't know, but I have to go." And finally, he goes near a pond and looks into the pond and was stunned. Why another animal is looking at me? And what he noticed is whatever he is doing, it is also replicating. ये जो कर रहा है वो भी वही कर रहा है. Then he ran back. "Hey, come here, come here, come here. I have seen a magic today." What is the magic? "No, I have found a place where you can see yourself. All this day we could see each other, but there is a place where we could see ourselves. And it looks like me. I don't know, but it looks like me. Can anyone confirm?" Now tell, which donkey will confirm that it looks like him? But even that donkey said a beautiful thing. All these days we could only see each other, but there is a place where you can see yourself. So where is that place where you can see yourself? It's not outside. It's all within. When a donkey could realize that he is able to see himself, he is able to meet himself in that reflection, why don't you reflect on the divinity itself? And keep on doing your work. One fine day, even you will realize that all that I was seeking, all that I was seeing is not just a mere mirage. It's not just mere glimpse of nothingness. I am truly nothingness. And when you reach to that space of nothingness, all your questions drown in it. And I believe, like, with all these question and answers, with all the practices that we keep on doing, slowly, 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 you will remove all the coverings of yours. And then one fine day, when you face that pond called as divinity, you will see it absolutely reflects you back. And it will not quench only your thirst of the body, it will quench the thirst of your soul. Ultimate one. Now, when I am talking even about a donkey, can you see it can still take you home? And now all the people in the room, why are you so silent? Because in my speaking also, there is a creation of that space. There is one saying in our language that समझा वा समझे नहीं means जिनको समझा रहे वो समझते नहीं है, समझे इतना थोड़ा means जो समझते हैं वो बहुत कम होते हैं, मगर समझे पण माने नहीं means जो समझ रहे हैं मगर मानते नहीं, वो प्रजापति के घोड़े, मतलब जो कुम्हार है उसके घोड़े, मतलब गधे। तो कभी-कभी So the simplest thing of being in that space is
accepting that space. You know what? Momentarily we accept it, but in the next moment we discard that place. We get lost into this jewels of the world. But sometimes the environment also intervene. Which environment? Which environment are we talking about? Maybe Yesterday, I was talking with someone. Yeah, day before yesterday, Vinay Lataji was here. So I was telling them there is a person. Just listen to this carefully. There is a person. If you know the vehicle called as Bugatti Veyron, now they have come up with the advanced version of Bugatti Chiron also, right? If you buy it in India, it would cost you around 26.5 crores, that car. Okay. And there is one person who has bought that car, and then he is spending another 30 or 32 crores on that. You know why? What is he doing? Haribhai knows it very well. He is naming his car Moon Dust. What do you mean by that, moon dust? He is importing a rock of the moon, crushing it, putting into the paint and spraying it on his car. वो पत्थर को लाके चूरा करके उसके ऊपर डालने के लिए और 32 करोड़ खर्चा कर रहा है. What would you call this person? insane. No, what would you call this person? Insane. How many of you would laugh at that person first of all? कि भाई गाड़ी खरीदा, समझ में आया, पत्थर के लिए इतना क्यों, वो भी गाड़ी से ज्यादा. We laugh at it, right? And I laugh at you people. बोले क्या पागल है, पत्थर के लिए इतना पैसा देता है. मैं भी कहता हूं क्या पागल है, अपना जीवन को पत्थर के लिए लुटा दिया. He lost his life for the stones. क्या? So we see everything, we don't know it, we don't understand this part. But how will you realize this? If you are conscious about that. If that person is conscious that with that money, he can change many lives. Yes. Then what would he do? Similarly, I'm saying your life is just like that. When you appreciate your own value, we don't know our values. That's the problem. That's why we keep on spending it, throwing it into rubble, into soil, into clay. Then, if you are here, if you keep on with that awareness always, that every single moment of mine is counted, and every single moment of my life is the step towards divinity, how would you spend it? It's just like this, a person who is sleeping in the bus. The bus goes on. He doesn't know anything. The bus stops, the driver changes, everything happens, but it is not aware of anything. Lost in dream. Let us not be that. Let us be aware. And if you can keep your awareness as much as possible, if not all the time, just increase it slowly. And it will increase on its own. You don't have to worry on that part also. But what you have to do? One, detachment that I am not this. Two, being aware that I am not this. And then you see, you play the game.
And when you play, you don't play to win or lose. You just play. और वो जीवन नहीं, वो लीला हो जाएगी. Then people looking at you, they will also say like, quite impressive. What a life. And you might inspire others to live that way. Yeah, Dhavalji. Yeah. I read in one book last week that as a kid, when we don't follow parents' advice, they don't like it. At the same time, same way, if we don't follow Guru's advice, they may not like it or please it. That's a very dangerous statement, There's a very dangerous statement because many people believe that. See, there is a difference between a guru and a parent. A parent thinks they have created you, but the guru works on creating you. Did you got the difference? The parents think they have created you, but the guru thinks that you can be created. Means he sees a possibility in you. He sees a ray of hope in you. And more than that, a true one will see himself in you. And not only in your good deeds, in your errors also, because he could see that this is also the same path I have walked. मैंने भी इसी रास्ते से चला था. और शायद अगर मैं यहाँ गिर जाता, if I would have stopped there or I would have fallen there, I could not have reached to this place. So in that case, he becomes a little different. And he says, I give you another chance. Another chance. Another chance. Another chance. And finally, choice. So in those chances, if you realize, if you reach it, amazing. But still he gives you the choice. You see, parents cry when students go away, like their child just go away or something like that. You might have heard stories about kids taking their parents and leaving them at old age homes. Have you heard a guru has been left in a old age home? Never, right? Why? They are already liberated. That's the difference. Because he is not attached. That's why he cannot be thrown into an old age home. Because he is already free. And why I'm talking all this? Might be someday down the years, you people will reach that space when you teach people. And then all these things that I'm speaking, taking my time and taking even your time, despite you realizing, you yawning, you smiling or dancing, whatever. Why this time is being taken? So that the next, when somebody asks you a question, you could guide them. And why I'm taking this time and patience to do so? So that when it comes to your turn, you will also have the patience and time to teach them. So Dhavalji, how? It is always in the now. Here and now. If I am here and now, I am there always. Where is God? In the now. He cannot be anywhere else. So where is he? In the now. Where you should be? In the now. And the most amazing part, you cannot be anywhere else except now. People ask question how to be in the now. I say you cannot be anywhere else apart from the now.
If you think about your present, you are in the now. If you are thinking about your future, even you are thinking about your future in the now. So where can you be? Nowhere. The only option is now. Only option is here. So where are you? Are you at home or you are searching for home? No, you are already home. It's just like standing in the veranda of the home and looking outside and searching where is home. I say turn around. And then say, all that we are doing, is it enough? Then I have a very simple saying. बात कितने भी अटपटी हो, अगर वो प्रेम और भक्ति से लिपटी हुई है ना, तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है. What did I say? बात कितनी भी अटपटी हो, अगर वो प्रेम और भक्ति से लिपटी हुई है ना, तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है. आप किससे लिपटे हुए हो? In what are you wrapped with? See, he has already chosen you. You are sitting here, you are speaking about it, you are thinking about it, you are talking about it, you are doing all the things that you want about all that is there. And still you question, am I in the list? Hello, if you were not in the list, you should not be here. If you were not in the list, you should not be asking the question itself. You remember the last statement that I said on Sunday? Before you know that there is a smell in the air, the smell is already present. The scent has accepted you first. Then you accepted the scent. इसीलिए कहते हैं जो दिव्य परमात्मा है उसने आपको पहले ही पकड़ रखा है, इसीलिए आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मानो जैसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ रखी है और बच्चा भी कोशिश करता है माँ को पकड़ लेने के लिए. So what are you searching? How to be there, always in that space? Not forget that you are not in that space. So Dhavalji, are you there now again? Yes. So don't go away. And one last quick one. I have seen your video also. Hariji has posted me quite a long time back, but still regarding this sleep reduction. Oh, sleep reduction. Okay. That was for students. For you people, there is something else. Now, okay. So we'll talk about that again. Maybe some other day if you feel like. Sure. Keep it, park it in the parking for next week. Might be some people are waiting for that. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Dhavalji. But don't move away. Sure. Thank you, Hariji. Thank you, Dhavalji. Kamlenderji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम कमलेंद्र जी. गुरुदेव प्रश्न दो हैं इस बार. हाँ जी. एक प्रश्न तो ये है कि आत्मा क्या सिंगल यूनिट है या इट इज आल्सो ए क्लस्टर ऑफ मेनी थिंग्स. ओके. क्यों ये कुछ प्रश्न होता है? क्योंकि शरीर के अंदर इतनी सारे सेल्स हैं, वो भी अपने आप में एक यूनिट है, उसके अंदर भी एक आत्मा होगी. yes. क्योंकि जीवित है, इतने सारे बैक्टीरिया हैं, क्या क्या नहीं है इस शरीर में. तो अपने आप में ब्रह्मांड है एक, ये ना. हाँ. अब मतलब उसको मैं एक कैसे मान लूं? ओके. क्योंकि फिर जब हम बात करते हैं ना कि कर्मा इसका है उसका है, वो इकट्ठा होगा, अगले जन्म में जाएगा, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो कर्मा किसका होगा? यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड है इसमें, तो उसमें कर्मा किसका हुआ? मेरा तो है ही नहीं कहीं भी. ओके. और दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि अब हम मनुष्य बन के बात कर रहा हूँ उसमें, कि हमारे घर में जैसे हम लोग तो एक
माहौल हमने बना रखा है अपने घर का, एक पॉजिटिव उसका, उन सब चीजों का। लेकिन कभी कभी कुछ गेस्ट आते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है। इट इज ऑलवेज हैपेंस कि भाई कोई आया है तो उसके कुछ इमोशंस और उसकी एनर्जी वो वहां रह जाती है। ओके, तो उससे कैसे अपने को, मतलब अपने एनवायरनमेंट को सेव किया जाए? ओके, चलो। So first question first, are you one unit or you are many? यस। But you have already said that you are many. तो कोई कर्म है ही नहीं फिर मेरा, ये ना जिसको मेरा कोई समझ, कर्म है ना कुछ है। यही तो मुक्ति है। जो अपने कर्मों से मुक्त हो गया वो तो मुक्त हो ही गया। The one who was freed himself from his karma, he is liberated. Now, we all understand that every cell has a life, every cell has an understanding, every cell grows, reproduces, dies. Absolutely. So what you thought yourself to be one, you are not one, you are already many. Absolutely. Acting as one. So when you are acting as one, if you realize that nothing is your doing, it is not only the liberation of you, it is the liberation of all the conglomeration of cells that you have. You know why it is, again, a human life is given so much of importance? Because here you don't only liberate yourself. Means you don't only realize all the cells in your body. When you are doing a chanting, when you are doing a mantra, what is getting affected here? It's complete unit. Can you see? You are just like the God for them, and the God is working to liberate them. So the liberation is not of you, the liberation is of all the other trillions of cells. Now check your responsibility. So we are just replicating what Shiva is doing for us, and we are doing for the cells. I have never denied that you are not Shiva. You are not accepting it. No, we are accepting it now. So can you see? Exactly that's what you are doing. You are the God of this creation that you have created. And now when you realize that, you stop giving stress to your own self. Means the body and the mind that you think yourself to be. So when you are not giving stress to this, that means what? You are not creating in the hell anymore. And when you are just happy and ecstatic, who says I'm happy and ecstatic? You say you are happy and ecstatic, but who dances? The body. Then who is feeling that happiness? It's a complete. Not only you, but all the others. And have you heard this statement again and again? Every cell of my body just got activated. Means what? You are saying that you not only awakened, but all that is there in you, that you have accepted as yours, is also awakening. And in your awakening, your entire world awakes. So this physicality that we are talking about is a conglomerate of things, but you are the master of it. And when you think about liberation, now think about how many trillions of things you are thinking a liberation about. And who can think about trillions of things? I think he should be God. Absolutely. Because you have more population in your body rather than in this world. So I think you are a bigger God. Just unaware of it. Absolutely. So when we tell all these things, the responsibility grows up. But how to go ahead with it? अपने शरीर को, मन को, जो ये कहते हैं ना कि शुद्धिकरण प्रोसेस, जैसे
पंच महाभूत शुद्धि हो गया, या फिर रोज जो भी स्नान करते हो, या तो जो भी मंत्र पढ़ते हो, जो भी जाप करते हो, वो सब क्या है? शुद्धिकरण ही तो है। एक छोटी सी बात याद आई, जब राम वनवास गए, okay, so when Ram was going to Vanvas, we know like he has to cross the river and he called the boatman, like वो केवट को बुलाते हैं, नाव चलाने वाले को, उसको बुलाते हैं, कहते आओ। तो क्या कहता है? कहता ये है कि पहले तो पैर रखने नहीं दूंगा, आपके छूने से पत्थर नारी हो गई, और ये तो पत्थर तो भी कम से कम थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, ये तो लकड़ी है, उससे भी नरम है, और जल्दी बन जाएगी। और अगर ये नारी बन गई तो जो घर में है वो क्या करेगी? और दूसरा, ये तो तारने वाली है, अगर ये नारी बन गई तो ये जो नैया इधर से उधर पार करती है वो कैसे करेगी? जो दूसरों के काम आती है वो कैसे करेगी? राम बोले तो क्या करना है? ना पैर धोने। वो पैर धोने का जो लर्निंग है वहां पे, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ इट इज। वो कहते हैं कि राम को बिठा के उन्होंने चरण धोए, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि चरण के रज को धोऊंगा, क्योंकि आपके रज लग के पत्थर नारी हुई। और रज को किस में धोऊं? गंगा जल से। यही था ना? तो वो गंगा जल लाता है और पैर धोता है, यही है ना? आपने इतना ही सुना है ना? मैं आपको सुनाता हूं। केवट कहता है कि मेरे जो आपके जो चरण के रज हैं उसे धो रहा हूं मैं। मतलब व्याख्या देखो, वो जानता है कि ये भगवान है, आप जानते हो कि आपके अंदर भी परमात्मा है। केवट क्या कहता है? मैं आपके रज को धोऊं तब जाके आपको नाव पे बिठाऊं। तो यहां क्या कहता है वो कि जो रज है, मतलब मेरा जो रजोगुण है, उससे मैं भक्ति के गंगा जल से धोना चाहता हूं। क्या समझ में आ रहा है? मीन्स जो रजोगुण जो है, मेरे जो तमोगुण जो है, जो मेरे अंदर है, मतलब रज जो है उसमें धूल मिट्टी भी है, तो कहता है कि मेरे जो रजोगुण है और मेरे जो तमोगुण है उसे मैं भक्ति के गंगा जल से धो ताकि राम को प्राप्त हो। तो उसी तरीके से कमलेंद्र जी, जब हम इन सारे चीजों की व्याख्या करते हैं, हमें एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मोक्ष जो है, ये जो हमारी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। शायद इसको जिसको धारण कर रखा है हमने, उसे मुक्ति के मार्ग ले चलने के लिए आए हैं। तो इस बात से अगर हम देखें, आपने जन्म लिया है या आपने अवतार लिया है? तो अवतार ही हुआ। मैंने कब मना किया? तो अवतार है। और अवतार कौन लेते हैं? तो फिर आप कौन हो? बिल्कुल बिल्कुल। और धवल जी आके पूछते, भगवान पूछता है मैं भगवान कैसे बनूं? अब इनको क्या बताए भगवान बच्चा कि भगवान कैसे बनूं? So, हमारे सारे जितने भी कथाएं हैं ना, उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर व्याख्याएं हैं। अगर उसकी आप सही निचोड़ निकाल पाओ, इफ यू ब्रिंग आउट दैट, पुल आउट दैट pulp of it, you will realize like how beautifully everything has been told. Yes. और वहीं पे और एक घटना घटी थी, जब केवट आने से मना किया और लक्ष्मण को क्रोध आ गया। और लक्ष्मण उठाया धनुष और कहा, तू नाव लेके आता है कि मारू तुझे? यही, will you bring the boat or I'm going to kill you right now? तो कहता है कोई बात नहीं,
मरूंगा तो भगवान के प्रिय के हाथ से मरूंगा. Means if I when I die in the with the hands of the most lovable person of my God. Second, कहां मरूंगा? गंगा के किनारे. और अच्छा, किसके सामने मरूंगा? राम के सामने. और बढ़िया. साथ में कौन है? सीता माता. सीता और माता, मेरा मोक्ष कोई रोक ही नहीं सकता, मार मुझे. सही बात. तो मैं भी यही कहता हूं कि आपके जीवन को इस तरीके से बना दो. मेक योर लाइफ इन दैट ब्यूटीफुल वे दैट यू रियलाइज योर राम, यू रियलाइज योर लक्ष्मण, यू रियलाइज दैट गंगा रिवर, you realize the Sita within you, that when death comes, you say, come. आजा. और तब लक्ष्मण डर जाते हैं. इसका मतलब क्या? मृत्यु भी उससे डर जाता है जिसने अपने आप को जान लिया हो. क्योंकि मृत्यु क्या है? भय है. और आप निर्भय हो गए हो. और निर्भय नहीं, उसके नेक्स्ट स्टेप अभय. So may you all realize that part. That Sure. क्या हो आप. हाँ? और इसी तरीके से भक्ति के गंगा जल से धोते रहेंगे. We'll keep on washing all that things. हाँ? Now come to your next question. Yeah, please. अगर कोई आते हैं घर में तो वो कैसे? आपके घर में अतिथि आते हैं, बिल्कुल. लेकिन हमने तो कुछ कह रखा है ना कमलेंद्र जी. सब कहते हैं अतिथि देवो भव, हम कहते हैं देवो अतिथि. देवो अतिथि. तो अब से मन में ये विचार करके चलिए कि मेरा जो द्वार है वो केवल देवताओं के लिए खुलेगा. अब जो भी आए उसी को आना पड़ेगा. और दूसरी बात, लेट्स स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस. Energy always flows from a higher to a lower level. Yes. Can anybody deny that? Nobody denies it because energy flows that way. वो ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है. जो सबसे ज्यादा है वो ज्यादा से कम की तरफ गति करेगा ही करेगा. बिल्कुल. तो आप अपने घर की ऊर्जा को इतनी ज्यादा कर दो कि जो आए वो थोड़ा कुछ लेके जाए, ना कि देके जाए. Make your home such energetic that whoever comes into that place, rather than giving any negativity, even his negativities are washed away and he carries some positivity with him while going back. Why should I be worried? Got it. क्योंकि मेरे घर में वही है ना, हमारा दुख इतना बड़ा होता है कि हमारा सुख उसमें डूब के मर जाता है. मैं कहता हूं सुख को इतना बड़ा कर दो कि दुख डूब के मरे. उसी तरीके से द पॉजिटिव एनर्जी को इतना ज्यादा कर दो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए वो उसके डूब के मर जाए उसके अंदर और उसका भी उद्धार हो. So when you are doing that chantings, when you are doing your mantras, whenever you are doing all these things, need not worry. Got it. All that you have to do is stand as a guard at the gateways of your mind. क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं नहीं जाती, माइंड में जाती है. Okay, so make yourself so amazing that whenever somebody comes, even they want to speak something negative, they could not. मानो कुछ हो जाए उन्हें. That's how you should be. तो कमलेंद्र जी, डन. बस चरण धोते रहिए. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Kamlesh ji. Thank you. Avaji, please unmute yourself. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम आभा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया. कृपा दृष्टि आपकी ऐसे ही बनी रहे बस. गुरु जी, ये जो सेशन बहुत अच्छा था संडे का, उसका बुद्ध पूर्णिमा का, इसका गणेश जी चतुर्थी का, गणेश जी का बुधवार का, तो वो कुछ आह्लादित करके गया, आनंद का अनुभव लेके गया.
बट मेरा क्वेश्चन तो मेरे लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, लास्ट वेडनेसडे के जो 86 सेशन था ना, उससे रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन। मतलब वही है टाइम ना कम कि था। वही है ना कि सांप निकल गया पूंछ रह गई। हाँ चलो नहीं कोई गुरुजी, नहीं। सांप आप पूछ पूछ सब निकल गई, ओके, बट वो कहीं जुड़ाव था वो रह गया है अभी थोड़ा अच्छा सा। चलो पूछ लो। हाँ, और वो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कर रहा था परेशान, तो मैंने कहा मैं आज इसको पूरा क्लियर ही कर दूंगी, शायद मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लेना पड़े। क्वेश्चन तो मेरा ये था, क्या मैं पूरा क्वेश्चन आपको सुना दूं पहले, क्योंकि वो छोटे छोटे खंडों में है। अरे वाह, तो रामायण वाला है या महाभारत वाला, जो भी खंड है ना सुनाए रामायण वाला कीजिए। है ना महाभारत वाला है। तो कमलेंद्र जी ने कहा ना कि ये जो ब्रह्मांड है ना अंदर, तो मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा ऐसा ही है। अरे मुझे नहीं पता, आप सुन लीजिए पहले, ठीक चलो है। ठीक ठीक है। हाँ तो गुरुजी, पहले तो क्वेश्चन ये है कि वो जो मुक्ति है ना, उसमें तो बार बार जाना है आना है, और ये चक्र में हमको फंसे ही रहना है ना। अगर ये है मुक्ति, तो फिर मोक्ष क्या है? और अगर मोक्ष है, तो उस मोक्ष के लिए क्या ज्ञानी होना जरूरी है? कि ज्ञानी होंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा, भक्ति में मोक्ष प्राप्त नहीं है। ओके, और अगर मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सबसे सरल उपाय क्या है? और फिर एक जो मेरी समझ में आया था, वो था, मैंने कहीं पढ़ा होगा या जहाँ, मुझे नहीं पता किस दिमाग में किस समय से ये बात घुसी हुई है, कि एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है जिसका कोई आकार नहीं है। वो तो हो गया ईश्वर तत्व, ईश्वर, नॉट देवता, ठीक है। और मेरे जो जीवात्मा है मेरा, वो बहुत छोटा सा प्रकाश पुंज है, वो उसमें समाहित हो गया। क्या यही मोक्ष है? फिर उसे ढूंढेंगे कैसे कि वो जीवात्मा वाला मेरा प्रकाश पुंज कहाँ है जिसे वापस आना है? ये क्या है? और क्या अंतःगति हमारी मोक्ष में सहायक है? अब हमारे इतने सारे हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस, इनको एक बड़ा समझ के आप कैसे भी, आप अब इसका सॉल्यूशन बताइए, आप इसका आंसर बताइए। नहीं क्वेश्चन तो छोटा ही था, मुझे लगा कि सारी आत्माएं आपके अंदर, जैसे कमलेंद्र जी ने कहा कि हर एक सेल में लाइफ होता है, एवरी सेल हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस एंड हाँ एवरीथिंग। नहीं, आई थिंक इतना सा, एवरीबॉडी हैज कम टुगेदर टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस टुडे। हाँ नहीं चलो गुरु कोई जी। बात नहीं, चलो उससे भी बात कर लेते हैं। आपने हाँ जैसे कहा कि व्हाट इज मोक्षा मींस व्हाट इज लिबरेशन, हाँ एंड व्हाट इज मुक्ति। हाँ, क्योंकि मुक्ति में तो बार बार जाना आना है, और मोक्ष के बाद ये सब खत्म। देखो, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? मुक्ति मींस आप किसी चीज से बंधे हुए थे, उससे मुक्त हो गए। हाँ लेकिन जरूरी है नहीं कि आप उससे छूट गए। फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी सो मेनी पीपल दोज हु हैव गॉन ऑन ए डाइट। एनीवन इन द रूम डाइटिंग के पे गए? ओके, और एल्स यू थॉट लाइक ओके I'll stop doing this. Let's say a person who is a smoker, ठीक है, he has been smoking for a long time and he decides that I'm not going to smoke anymore. He leaves it. क्या हुआ? उसने अपने आप को उससे मुक्त कर दिया। किससे? वो सिगरेट की लत से। ले रहा था, हाँ स्मोक कर रहा था। लेकिन किसी दिन इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस अगर उसके हाथ में और एक बार सिगरेट आया तो ले लेगा। फूंक देगा ना। हाँ, तो मुक्ति जो आप कहते हो वो टेम्पररी चीज होती है, टेम्पररी। क्योंकि हाँ आई हैव लेफ्ट इट। समझ रहे हो? ठीक है। मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन मैंने जिसे छोड़ दिया उसको फिर पकड़ सकता हूं। आई कैन अगेन गो एंड ग्रैब इट। यस। टुडे आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि आई विल नॉट बी लेजी, आई विल गो टू द जिम। ओके, दे गो टू द जिम फॉर 3 months, 1 year, 2 year, 4 year, 5 year। सो वो उससे मुक्त हो गए। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा आता है और वो जिम जाना बंद कर देते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अगेन गॉन बैक टू द सेम साइकिल। तो क्या था, कुछ दिनों के लिए मुक्ति थी, फिर फंस हाँ गए। तो ठीक है। मुक्ति ये है, क्या है, मैंने छोड़ दिया, आई हैव लेफ्ट इट, आई गो एंड अगेन आई कम बैक। लेकिन मोक्ष का क्या है? मोह का क्षय हो जाना।
मोह का ही क्षय हो गया, मीन्स आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, आई डोंट इवन हैव अ डिजायर ऑफ इट लेफ्ट। छोड़ने में कुछ ना कुछ डिजायर रह जाता है। ऐसे तो छोड़ तो हमने कई चीजें रखी है, जैसे एक बाबा जी थे और वो कहते थे कि पता है मैंने ना ये खाना छोड़ दिया है। वो बोले कितने दिन हो गए? बोले तकरीबन 12 साल 13 दिन 24 घंटे, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं। यहाँ रखा है, तो वो छूटा है या अभी भी बैठा है? यहाँ रखा हुआ है अभी भी। तो उसी तरीके से आबाजी, अगर मोक्ष हो गया ना, आई लेफ्ट इट नॉट टू रिटर्न बैक। मोक्ष कैसे होता है? एग्जाम्पल बता देता हूं। आपने किसी को कुछ दान दिया और पलट के नहीं देखे, वो मोक्ष है। आपने किसी को कुछ दिया और पलट के देखे, आप उस चीज जो चीज को दिए उसे मुक्त तो हुए, लेकिन अभी भी मन लगा हुआ है उस पे। देखते रहोगे उसने सही इस्तेमाल किया नहीं किया, उसने उसको लगाया नहीं लगाया, उसका इस्तेमाल ही रियली यूज्ड इट इन द राइट वे और नॉट, यस और नो? ठीक बात। हाँ, तो और एक चीज देखिए यहाँ पे, जब आप अपने बच्चों को पैसे देते हो, आप पूछते हो क्या किए, क्या किया, यस और नो? हाँ, तो वो क्या है, वो पैसे से आप मुक्त हुए, लेकिन वो मुक्त के साथ आप अभी भी जुड़े हो कि बच्चा उसको सही इस्तेमाल किया नहीं किया, कि नहीं किया। ठीक, ये मोक्ष हो गया। ठीक बात है। ओके, एंड लेकिन किसी अनजाने को दिया और बोला ये तेरे को दे देता हूं, तू लेके जा, वो पलट के नहीं देखे आप। और हमेशा देखिए एक बहुत मजेदार बात यह है, मैंने आपके बच्चों का एग्जाम्पल दिया और मैंने एक गैर पर्सन का एग्जाम्पल दिया, वन हु इज योर ओन फैमिली मेंबर एंड अनदर हु इज नॉट योर फैमिली मेंबर, यू डोंट नो देम। देखो बंधन किसमें है? फैमिली में, नॉन में बंधन है। हाँ, तो देख रहे हो, जब तक वो बंधन में बंध के आप छोड़ते हो तब शायद आप मुक्त हो भी सकते हो, लेकिन उस बंधन के कारण फिर उतरोगे, will come back। लेकिन मोक्ष हो गया मतलब आई वॉट एवर आई हैव गिवन टू एनीवन, मैंने किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, आई क्लोज द ड्रामा हियर दिस टाइम। इसके बाद मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। Why I am here, even if I am here to complete my karmas, ठीक है, I am completing all my karma। हे भगवान, जिसका जो ऋण है इसी लाइफ में चुकता करा दे, चुका दो। हाँ, then the question would be what if what you have given to someone, हाँ, जब आप किसी को कुछ देते हो then you are the master of it whether you want it back or not। so you decide कि मैं यहां जिसका हिसाब है चुकता करने आया हूं और जिसको जो देता हूं वो मुझे नहीं चाहिए वापस, आई विल नॉट टेक इट बैक। ठीक है, ओके, तो समझ में आया यहाँ पे या हरि भाई? आई गॉट योर मैसेज। सो आबाजी, कैन यू सी द डिफरेंस हियर? एक मुक्ति है, दूसरा मोक्ष है। तो मुक्ति जो होती है वो मुक्ति होती है इस संसार से, दूसरे संसार में जो चले जाते हैं वो इस संसार से मुक्त हो गए, लेकिन कुछ नया चीज पकड़ लेती है उन्हें, तो वो हो गई मुक्ति। मोक्ष हो गया वो कि ना यहाँ के ना वहां के, बिल्कुल मिल गए जाके उसके साथ। सो ये हो गया डिफरेंस मुक्ति और मोक्ष का। ये क्लियर है ना? सो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब दूसरा सवाल क्या था उसके अंदर? मोक्ष के लिए क्या ज्ञानी होना बहुत जरूरी है? ओके, चलो। सो मोक्ष के लिए क्या ज्ञानी होना जरूरी है? मोक्ष के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए ज्ञान होना जरूरी है। इसमें बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग, यस और नो? इसमें ज्ञान नहीं, एक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञानी तो कोई भी बन सकता है, कुछ भी पढ़ लो, कोई भी। यू पीपल माइट हैव रेड मोर देन मी। मेरे अगर मैं अपने डिग्रीज दिखाऊं, शायद आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े होंगे, यस और नो? प्रणीत क्यों सर खुजा रहे वो पता नहीं मुझे। He thinks he has not read it, but there must be someone in the room who has studied more than me, yes or no? Possibility है कि नहीं है? पक्का है। जी। Then what's the difference in it?
सो ज्ञानी किसे कहते हो? ज्ञानी वो है जो ज्ञान को रट लेता है, वो ज्ञानी हो गया। लेकिन ज्ञान क्या होता है? वो जो समाहित हो जाता है आपके अंदर। आश्रम में तो शामिल हो यहाँ पे बाहरी ज्ञान की बात नहीं हो रही है या अंतर ज्ञान की बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द आउटवर्ड नॉलेज। आउटवर्ड को क्या कहते हो? नॉलेज कहते हो। इनवर्ड को क्या कहते हो? विजडम कहते हो। राइट? सो जब अपना खुद का ज्ञान आपके सामने आ जाए, भले ही वो ज्ञानी बनने के बाद भी आ सकता है या तो ज्ञानी बनने के बाद नहीं भी आ सकता, क्योंकि ज्ञानी बनते बनते ईगो भी आ जाता है और वो ईगो फाटक बन जाता है बीच में। इट डजंट अलाउ। तो ज्ञान अर्जन करो। इट इज द वर्ल्डली थिंग्स आर देयर, उसको चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। आप पढ़ो लिखो सब करो, लेकिन अपने आप को जानो। जो बाहर की चीजों को जानता है वो ज्ञानी है और जो अंदर है वो ज्ञान है। तो अपने अंदर अपने आप को जब जान लेते हो तब आपका मुक्ति है। क्यों? क्योंकि जैसे कमलेंद्र जी ने कहा कि इफ इट इज ऑल द कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ऑल द सेल्स, अगर सारे सेल्स टुगेदर आके काम कर रहे हैं, फिर मेरा कैसा कर्म हुआ? हाँ, ये जब आप जान लेते हो, पहला क्या है? ज्ञान के जरिए, मतलब थ्रू एजुकेशन, थ्रू नॉलेज, you know you have so many cells, and with realization you came to know that I am not the doer. ये है ज्ञान अंतरात्मा की। तो जब आप अपने आप को जान लेते हो, you realize that I am not the doer anymore, मैं करता ही नहीं हूं, तो क्या हुआ वहां पे? तो ये जो सब बातें हम अभी कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, वो अभी आपको ज्ञानी बना सकता है। आप शायद इसको सुन के जाके और 10 लोगों को बोल के इंप्रेस कर सकते हो, लेकिन क्या आप उस ज्ञान को अपने अंदर उतार पाए? क्या वो जो ज्ञान जहां पे इंडिकेट कर रहा था उस चीज को आप देख पाए? क्या आप वो समझ पाए कि ये ज्ञान कहां से आया होगा? लेकिन ये कोई नहीं करता। हमेशा लोग ज्ञान को रटा रटाया कर देते हैं। मानो जैसे कोई तोता हो, लाइक ए पैरट, उसे राम 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 कहो, वो राम 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 कहेगा। उसको गालियां सिखाओ, वो गालियां कहेगा। लेकिन वो राम राम कहने के बाद भी क्या उसको राम नाम का महत्व पता है? नहीं ना। तो वैसे भी आपको बहुत सारे तोते मिल जाएंगे जो बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है उसे नहीं पता। What is the importance of that? They never realized it. तो मोक्ष ज्ञान की जरूरत है। ज्ञानी बनो, कोई बात नहीं, दूसरों को हेल्प कर सकते हो उससे, लेकिन मोर देन दैट रियलाइज योरसेल्फ। दूसरी बात, क्या केवल इसी से हो सकता है? नहीं, भक्ति से भी हो सकता है। भक्ति का मतलब क्या है? मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, अब तू संभाल ले, ये हो गया भक्ति। क्योंकि ज्ञान जो मार्ग है ना भाजी, बहुत मुश्किल मार्ग है, क्योंकि वो हमेशा तर्क करता है। ये और तर्क जब तक करता है ठीक है, वो वितर्क भी करता है, और वितर्क तक भी ठीक था, वो कुतर्क करता है। कुतर्क पर उतर आना, ये बहुत कठिन, वैसी ये मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज ए वेरी डिफिकल्ट स्पेस। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मार्ग जो है वो राजा है। ठीक है, मतलब आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है, आपको ज्ञानी बनना है, तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यस और नो? मैंने एक बार भक्ति मार्ग के बारे में बात किया था। उस दिन मैंने ये कहा था कि जो ज्ञान है वो राजा की तरह है। अगर कोई राजा आपके घर आए तो आप क्या क्या करोगे? स्पेशल अटेंशन देंगे। झाड़ू पोछा लगाने से लेके, नए नए वस्त्र से लेके, नए नए, यू ब्रिंग ऑल द न्यू थिंग्स टू योर हाउस बिकॉज द किंग इज कमिंग। उसी प्रकार से ज्ञान क्या कहता है? पहले अपने अंदर जो मैला है उसको हटाओ, तब जाके मैं आऊं, सो दैट आई कैन कम। है कि नहीं? इसीलिए क्या कहते हैं, ओ इफ यू रियली वांट टू लर्न एम्प्टी योर कप। मतलब क्या है? वो कहता है जगह जब तक खाली नहीं है राजा आएंगे नहीं। और राजा खुद आते हैं या लाना पड़ता है?
उनको जाके लाना पड़ता न्योता देना पड़ता है, लाना आइएगा पड़ता है। हमारे घर। बिल्कुल बिल्कुल लाना ठीक है, पड़ता है। तो ज्ञान वैसा है। तो ज्ञान को जब आप धारण करते हो तो बहुत तैयारी है उसकी। लेकिन भक्ति कैसी है? भक्ति आपके घर में काम करने वाली जैसी है। मतलब कि वो जब आती है, वो ये नहीं कहती कि तुम जगह बनाओ या फिर चेयर नए डालो तब मैं आऊंगी। वो कहती है घर जैसा भी है, मुझे बस अंदर बुला लो, मैं साफ सफाई कर दूंगी। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। क्या आप कहते हो कि नहीं, आदित्य जी सुबह सुबह उठे और कहते हैं कि मेरी मेड आने वाली है, सो लेट मी प्रिपेयर द हाउस नाउ, आई विल क्लीन एवरीथिंग एंड देन आई विल अलाउ द मेड टू कम इनसाइड द हाउस। कोई करता है ऐसा? नहीं करता ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेड जो है वो आएगी खुद ही साफ कर देती है। भक्ति सफाई वैसी करें। चीज है। तो भक्ति जब आती है ना, वो खुद सब साफ सफाई कर देती है, मैल सब धो लेती है। तो आप बताओ कौन से मार्ग में चलना चाहते हो? और वो कर्म तो मार्ग भक्ति तो के और मार्ग, उससे कठिन है। भक्ति से ज्यादा मेरे लिए तो कोई सुलभ है नहीं। हाँ, तो हमने मैं वही तो कहा कि केवट नहीं जैसे इसमें कर पैर सकती। धोते हैं वैसे ही धुल जाओ। अच्छा गुरु जी, एक चीज और है, हाँ जी। क्या जो अंत गति होती है हम्म, वो मोक्ष में सहायक है? बिल्कुल। मैंने तो वही चीज कहा जो पहली बार हम्म, में भी बताया था। अंत गति का मतलब क्या होता है? अपने आप के तरफ गति करना। तो नहीं गुरु जी, आप, अंत गति का मतलब जब मेरा महानिर्वाण हो रहा है उस ओके क्षण में, उस समय में जो स्थितियां पैदा होती हैं, उस गति की बात मैं पूछ रही ओके, थी। हाँ अच्छा। तो अंत गति की बात कर रहे हो, अंत गति की बात कर रहे हो आप, अंत हाँ, गति नहीं। ओके ठीक अंतः है। गति नहीं, अंत गति। अंत गति, अंत गति वो तो निर्धारित आप ही कर लेते हो पहले ही, जाने से पहले। कैसे? फॉर क्यों? हाँ, एग्जाम्पल, कैसे? यू वांट टू गो समवेयर, आपको कहीं जाना है, आप उससे पहले ही टिकट्स ले लेते हो ना, जी ठीक है। राइट? तो उसी तरीके से अंत गति जो है वो तो अब के कर्मों के हिसाब से हो जाएगा। तो अंत गति जो है दैट इज जस्ट ए लास्ट स्टेज ऑफ पुशिंग यू देयर। आप अभी जो करते हो उस तरीके से वो बन जाता है, और वो यस, आप उसे अगर कहो कि इज इट ए प्रोपेलर, यस इट इज ए प्रोपेलर। नहीं गुरु जी, आप एक बार हम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो अंत गति में जो सजग रहने वाली सिचुएशन आती है, हाँ तो उस वक्त में हम इतने सजग रह के क्या उस गति के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, आप जिस बात कर रहे हो दैट इज अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, दैट अवेयरनेस एट द एंड टाइम। क्या मैं उतनी जागृत हूं वो समय में भी कि जिससे मेरी सदगति हो जाए? हाँ, अगर आप उस समय में भी जागृत हो कि ये क्या हो रहा है, ये कपड़ा है आज बदल रहा है, और अगर ये कपड़ा आज बदल रहा है, मैं ये कपड़ा नहीं हूं, इवन इफ यू रियलाइज दिस वन थिंग इन दैट मोमेंट, क्योंकि कोई आसक्ति ही नहीं रही ना उसमें। हम्म। लेकिन अगर आप ये सोच के गए, अरे एक कपड़ा गया और एक नया कपड़ा ट्राई करूं क्या, वो फिर आना पड़ेगा। सो अज्ञान हो गया ना, फिर से वहां पे फिर हो अज्ञान आ गया, गया। अज्ञान आ गया। हाँ, तो लेकिन अगर आप कंप्लीटली, इफ यू रियलाइज योरसेल्फ कंप्लीटली इन दिस लाइफ इटसेल्फ, मतलब जान गए कि बस यही है, अब तो यही कौन रोकेगा आपको? आखिरी यही है, अब नहीं बस, आना। और कौन रोकेगा आपको? अच्छा गुरु जी, मोक्ष के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? ओके। क्या है यहाँ पे? मोक्ष, मोक्ष के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? बिल्कुल बारिश का पानी जब समंदर में गिरता है, जहां जाता है वहीं। उसको हम फिर खोज के वापस नहीं ला सकते कि कौन सी बूंद ऊपर से गिरी। मैं सही हूँ क्या? बिल्कुल। देखिए आबा जी, यही, हाँ। कभी कभी ये कहते हैं ना कि भगवान जब धरती पे आते हैं तो अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आते हैं, लेके क्योंकि आते उनको हैं। लीला करनी होती है ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही तो विलीन तो हो गए, लेकिन वो जब आते हैं शायद आप भी उनके साथ आओ, लेकिन तब जब आओगे तो लीला करने आओगे। अच्छा, फिर लिप्तता की आवश्यक, लिप्त नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। पक्का है। इसीलिए तो मोक्ष का इतना महत्व दिया जाता है हर चीज में। तब आएंगे जब प्रभु यहाँ अवतरित होंगे और लीला करने आएंगे। हम भी तो वही सही। कहते हैं कि हम तो आने से रहे, जब तक तू ना आए तब तक हम नहीं आएंगे। वो याद है ना चैतन्य महाप्रभु की कहानी,
हाँ बिल्कुल कि अगर बढ़िया। कुछ देना ही है तो ये दे कि मैं यही केला बेचने वाला बनूं और रोज आके तू मेरे साथ झगड़ा करके ये लेके जाए। केले लेके जाएगा। बस हमारा सिस्टम वही है। इवन इफ आई हैव टू कम, यू हैव टू कम। बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से समझ में आया। मोक्ष और मुक्ति दोनों चीजें। तो क्या 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 लेके जा रहे हो आज? हमें तो भक्ति से ही आनंद मिलना है, जो कुछ नहीं भी नहीं, मोक्ष मिलेगा। या मुक्ति? नहीं, मुझे तो चाहिए तो मोक्ष ही। मुक्ति में तो फिर कौन से लोक में विचरण करना है, फिर आना है, फिर आना है, फिर जाना है, ये सब चक्कर छोड़ के मैं तो भक्ति से मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश में रहूंगी। बाकी आपका आशीर्वाद है। और कोशिश तो छोड़ ही दो आबाजी, सीधा कह दो हाँ कि अब हो गया, कर लूंगी। हाँ अब काम हो हो गया। जाएगा। क्योंकि गुरु जी मैं ज्ञान नहीं हासिल कर सकती, मेरे नहीं नहीं, अंदर न इतनी क्षमता है ना हाँ, कुछ नहीं है। मुझे मुझे भक्ति से प्रेम है बस। इसीलिए भक्ति हमने तो कहा ना कि अगर लक्ष्मण तीर भी मारे तब भी बोल देना वही, मरूंगा तो भक्त के हाथ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भगवान तो के राम। सामने और हाँ गंगा नदी राम, के किनारे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, राम शब्द से रोमांच होने लगता है। बस इतना बस, काफी है। धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। धन्यवाद आबाजी। धन्यवाद एंड प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। चलिए। अश्विन जी, प्लीज अनम्यूट। प्रणाम मानस जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अश्विन जी। बहुत उषा दिन जी हो गए देख रहे आपसे हैं कि बात। अच्छा क्या सवाल पूछने वाले, मैं भी देखती हूँ। ओके सर, बोलिए। मानस जी, अगर हमारे प्राप्ति में कुछ है नहीं, ओके, समथिंग इज नॉट देयर इन अवर प्राप्ति, ओके, एंड हम उसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आई एंड वाज ऑल कर रहे हैं। थिंकिंग टू व्हेन टू टेल दिस स्टोरी इन द आफ्टरनून, सो यू गिव मी अ चांस। चलो बोलो। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो तो अगर हमारे प्राप्ति में है ही नहीं, एंड विल दिस हेल्प, और else are we in the false loop of manifesting, मतलब ओके इसके लिए हम लाइक false कर रहे हैं, तो that is the ओके, question, मानस जी। Yeah. देखो चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि अश्विन जी, इन योर वॉइस आई कैन फील द वॉइस ऑफ किशोर जी। धन्यवाद। चलो ठीक है। नाउ when we are talking about manifesting things and when ये सारे फिर अगेन संसार की बातें आ गई ना। चलो, so let's deal with it. So Say when bhakti also, say bhakti also, मतलब हमारे हाँ प्राप्ति में भक्ति भी हाँ, तो नहीं है ये शायद। नहीं, अभी देखिए, हाँ, भक्ति जो है वो चुना जाता है। ये जितने भी मोक्ष के रास्ते हैं, all the pathways that leads to liberation are the things that you choose. Means it's not the cab, it's not the car, it's not the petrol, it's the driver who chooses where it has to go. अब बताता हूं उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इज द बॉडी इज द कार, द लाइफ इज द fuel, but you are the driver where you want to take it. तो ये मैनिफेस्टेशन वाली बात नहीं है, ये कहां लेके जाना है उसकी बात है। So when you are talking about bhakti marg or towards the work that you are doing towards liberation, first and foremost thing, if you think like everything is written, then this is also written, that's why you are doing it. That means it has to manifest, or else why you are here? एक बात। दूसरा, वर्ल्डली थिंग्स को मैनिफेस्ट किया जा सकता है बिकॉज इट इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। बट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोक्षा? It is not the process of creation, it's the process of destruction. Have you realized that once? मोक्ष जिसे हम कहते हैं वो क्रिएशन प्रोसेस नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है।
डिस्ट्रक्शन प्रोसेस क्यों है? बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक. खत्म ही कर रहे हो ना. सो दैट मीन्स दैट कैन बी चोजन, तो चूज किया जा सकता है. सो आप जिस मार्ग पे चलते हो उसे चूज कर सकते हो, लेकिन संसार की कुछ चीजें हैं. If you really want to manifest that, that is a creation process. And if you don't have that in your, what you call that, fate, मुश्किल है. कहानी बोल दूं? So the story, because many people have started writing the stories. Sumaji, keep on continuing that. So this story, मैं बहुत दिनों से सोचा था, and I don't know like why it came towards in the afternoon, mid afternoon or so. ये कहानी मेरे अंदर आई फिर से. I said, okay, let me see if somebody asks. So this happens, there is a guru, and he's a very Siddha guru, like all powers, okay? And he has a disciple who has been taking care of him throughout his life. And he is a worldly man, means the disciple is a worldly man, but he takes every care of the guru. Means everything of the guru, from feeding to washing, everything. So it happened that the guru was about to leave the body. And then this person says, Guruji, you have powers and I know it. And throughout my life, I have done your seva. Why don't you give me wealth so that even when you are no more there, I can live comfortably? वो जो गुरु होते हैं फिर हंसते हैं और कहते हैं कि तुझे नहीं मिलेगा वो, you'll not get it. But this disciple is not ready to accept. Now he argues, I have done so much for you, so many things for you throughout my life, and you cannot do this much for me. The guru says, see, beta, tere bhagya mein nahi hai. You don't have this in your. But there is one thing, you have done all my seva, you will get liberated this life. He said, liberation theek hai, lekin paise? What about money? What about my life? तो गुरु कहते मैं दे तो दूंगा, लेकिन उसके बाद जो होगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. He says, okay. So Guru says, bring a bag. Bag लेके आता है. Guru says, close that, give me in my hand. And the Guru does something. He gives the money, like the bag back, and it is filled with jewels and money, gold, jewelry, and all those things. Now he's so happy. Oh, Guruji, listen to my words. Ne achhe Guru hai mere. And the Guruji said, but I am not responsible. What happens? He said, no, this is what I wanted. Thank you so much. Ran away from that place. While he was going, few thieves saw him carrying a bag. और उसको पकड़ते हैं और बीच रास्ते पीटते हैं. खूब पड़ी. So they get खूब अच्छी तरीके से beat up. He gets, means black and blue. And they take away the money and run away. Then returns back to Guruji again. Guruji, what have you done? He said, what have I done? Now you see, what is the condition of me now? He said, I already told you that this is going to, I'm not responsible for that. Then he says, but you only gave me that. No. He said, I didn't give you. You actually extorted out of me. Extortion समझते हो ना? हाँ, मुझे देने की इच्छा ना हो और फिर भी आप ले जाओ, उसे extortion कहते हैं. So you didn't ask, you didn't told, you just extorted that through me. That's why you got beating. तू गुरु का बात नहीं माना और जबरदस्ती लेके गया, इसीलिए पिटाई पड़ी तेरे को. फिर ये कहते फिर उनको कैसे मिला?
How did those thieves get it? He says, because they have it in their fate. And that's why you did all this drama. And you have done something wrong to them in their past life. That's why they bet you up and take the money away. मार भी पड़ी, पैसे भी गए. अब बताओ, जो दिया जाता है लेना चाहिए या एक्सटॉर्शन करना चाहिए? Of guru to disciple, why thief got the money? देखो, शिष्य तो एक बहाना था, पूरा धन उनको जो देना था. You see, Ashwin ji, at times you do all the hard work, but it is taken away by somebody else. Haven't we seen the story of the trees? Ki the grandfather sows the seed, the grandson eats the fruit. क्यों? उसी तरीके से शायद कभी किसी को कुछ देना है, उसके लिए वो सारे चीजें आपके हाथ से आके भी उनके पास चली जाती है. Remember one single statement that I am going to say. You will be happy for your entire life. For your entire life. जिसका जो है वो उस तक पहुंच ही जाएगा. जिसका जो है वो उस तक पहुंच ही जाएगा. If you realize this one statement and if you keep on saying this, you'll be so happy, you know. You will not be worried what slipped away from my hand. You will not be too ecstatic what came your way. Because whoever, whatever is, it will reach to them on its own. पहुंच ही जाएगा. Might be you are doing the manifestation process so that you can create a pathway so that they can come to you. वो चीज आप तक पहुंच सके, उसलिए शायद आप रास्ता बना रहे हो. Then why not? और वैसे भी, we are not dealing with a miser, we are dealing with God. And who knows, just by seeing my hard work, he says, चल ले जा. Then that's why keep on manifesting, and at the same time with complete realization that whatever even I'm manifesting, it's of no use, because all the manifestation that I manifest in this world, I have to leave this, and the only thing that goes back home is me. क्या करना है? चंद्रप्रकाश जी को तो मिला है. चंद्रप्रकाश जी कहते, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, हम वो भाग्य को बदल के रख देंगे. Then why do you walk on the path of spirituality? Spirituality changes your bandwidth. Spirituality changes your path. Spirituality puts you into another realm. Spirituality takes you to higher realms. And you are free from the bondage of karma and fate. अब बोलो. So is it better to ask for spirituality being in this world, or ask for the worldly things being in spirituality? मार्ग बिल्कुल उल्टा है. If I am in spirituality, all that I want to manifest, I will manifest. Because now I am not begging, I am the source. So इसी के ऊपर मुझे एक्चुअली बात करनी है, yet that is to be downloaded yet. Expression, experience, and creation. If you understand that path, अगर भाग्य बदला नहीं जा सकता तो आप मंदिर जाके सर क्यों पीटते हो? हाँ,
अगर भाग्य बदला नहीं जा सकता तो जाके सर माथा क्यों टेकते हो? अगर भाग्य बदला नहीं जा सकता तो जाके ये क्यों कहते हो कि नारियल फोड़ूंगा? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रास्ता है। तो मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डू, बट नॉट एज ए ह्यूमन, क्रिएट एज द डिविनिटी। क्या, कौन सा? detached manifestation. It's not even manifestation, it's creation. I don't Creation. use the word even manifestation, I use the word creation. When you are connected to the source directly, you create whatever you want. क्योंकि आपकी भी तो इच्छा शक्ति होगी, अगर शिव की इच्छा शक्ति है। क्रिएट, व्हाई नॉट? तो बताइए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए? So what next, Ashwin ji? Only thing that means I was defying my question. It is I couldn't ask. ये नहीं पूछ पा रहा था, or else my mind was not able to ask this, because there is bhakti में progressive like progression है, because every soul has to attain moksha maybe after whatever इसमें, तो वो प्रोग्रेशन चलता रहेगा। तो हम आज थोड़ा भक्ति करेंगे, मतलब वी आर इन द वे, लाइक अभी आपका सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आए हैं तो सुन रहे हैं। So there is a progression. How can you get such easy answers for all those tough questions for yours? Yeah. उतने मुश्किल सवाल लेके आते हो आप, लेकिन उसके बहुत ही सरल उत्तर है। That means कहीं ना कहीं आपकी तैयारी रही होगी। अब जैसे देखिए, हमारे ग्रुप में इतने सारे लिखने वाले हो गए हैं, मेरा तो कार्य और आसान हो गया। मैं तो रोज यही कहता हूँ, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूँ ना राम। राम हमारा काम करे, हम पायो विश्राम। उसी तरीके से अश्विन जी, why did I give you that example? I decided, I created a source that I want to create these reels. Okay, what did the universe did? It started sending people along. वही लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर भी वो हुनर है, उनको नहीं पता। लेकिन देखो, जब आप उस मार्ग में चलने लगते हो ना, तो दूसरों को भी खींच के ले आते हो। And why not create something beautiful like that? Why only beautiful reels? Why not beautiful real life? Okay. So thank you, Ashwin ji. Thank you so much, Maharaj. Janesh ji. और केवट प्रसंग समझ में आया, पसंद आया? हाँ जी। It has fired up so many things in me. मैं वही सोचता हूँ, मैं फिर से कहीं लिख ना दूं फिर से। गुरुदेव, आज के सेशन में ये भी तो सत्संग के से भी परे का सेशन हो गया। कमलेश्वर जी ने जो प्रश्न पूछे उसका आपका उत्तर, आभा जी का आपका उत्तर, और अभी अश्विन जी का उत्तर, अमेजिंग। अभी गुरु जी इसी के अंदर से जो उत्पन्न हुआ है वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब सवाल मुझे रक्त बीज जैसे लगते हैं। हाँ, बस ऐसा ही है, ऐसा ही समझ लो। ओके।
अगर ये फ्यू ट्रिलियन है और ये अगर खुद की लेके कर रहे, और मैं अगर इनको देख रहा हूँ और मैं इनकी मुक्ति का एक मार्ग हूँ, तो मैं कौन हूँ फिर? भगवान। नहीं, लेकिन मैं अगर ये ट्रिलियन में नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ? देखो, ओके ओके, उसका नंबर भी वन। उत्तर दे देंगे। नंबर वन। नंबर टू, ओके। अगर अगर यहाँ से तो एक कण भी ऊपर नहीं जाता है, हम्म। तो जब मैं शरीर त्यागता हूँ, तो वो त्याग शब्द वहां पे त्याग आता है, मृत प्राय शरीर होता है। तब ये फ्यू ट्रिलियन रह गए, तो इनमें से मेरे साथ कौन आया? ओके। अगर ये जीवित है तो इनके साथ मेरे साथ कौन आया? या ऐसा है कि मेरे मेरे आत्म प्रकाश से ही ये जीवित है, और मेरे ही आत्म प्रकाश की वजह से ये मुझे अनुभव दे रहे हैं, और मेरे ही आत्म बल के ऊपर से ही मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि ओके। त्याग है, तो फिर तो ये निकल पड़ा। और फिर जगत गुरु श्री कृष्ण ने बोला है ज्ञानी को मोक्ष, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में तो पता है कि मैं यहाँ जो करा हूँ वो भी पिछले जन्म का याद नहीं है, जो मुझे कैसे छुटकारा है। अब कहीं ना कहीं मैं महर लोक में भी था, वहां पे भी कोई कहीं से कहीं पथभ्रष्ट होके यहाँ आया। अब वो वहां का कर्म कब चुकाऊंगा मैं? तो ओके। फिर वो पतली गली, आप बताओ गुरुजी, वो यहाँ एक एक भुवन में ऐसा ऐसा करते 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 कब होएगा? जो आज का जो हमारा संवाद है वो हिसाब से मैं जो उद्भव के आया है। ओके। तो आप जब कहते हो कि मेरे साथ कौन गया, हु वेंट हाँ, अलोंग विथ मी? हाँ, क्योंकि मैंने त्याग दिया, तो फिर ये बेचारे कहाँ गए? ट्रिलियन कहाँ है? इसका सिंपल आंसर है, हाँ। बता दूं। हम्म। रोज सुबह सूरज को देखते हो, हाँ, यू सी द सन एवरी डे। सही है। सूरज की किरणें धरती पे गिरती है, हाँ, कब तक? जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक। हाँ, लेकिन जब सूर्यास्त होता है और उसका कोई भी प्रकाश रहता है क्या? खाली उसकी अनुभूति रहती है और कुछ नहीं रहता। हाँ। अब देखो, इसी चीज से समझ जाओगे। एक चीज आप नहीं समझे, जब सूर्य चमक रहा था, उसकी प्रकाश जब गिरा, हम्म। कुछ पेड़ पौधे थे जिन्होंने उसकी ऊर्जा से अपने आप को बना लिया, हाँ। राइट। हम्म। हम्म। सूरज एक है, सूरज का प्रकाश एक है, और सूरज के प्रकाश की शक्ति को जिसने धारण किया वो और एक चीज है, यस। राइट। तो यस। यहाँ पे तीन चीजें समझ में आई आपको? हाँ, पक्का। ओके। तो अगर मैं आपका जो सत्य स्वरूप है, अगर उस स्वरूप को मैं सूरज मानूं, हम्म। ठीक है, हम्म। और जो प्राण शक्ति जो ये पूरे बाकी शरीर को चलाती है वो उसका किरण, ओके। तीसरा ये जो शरीर है ये पेड़ पौधे, ठीक। क्योंकि सूरज के होने से ही ये सब है ना। ठीक। ओके। अब क्या हुआ देखो, अब सूरज जब चला गया तो रोशनी गई, लेकिन रह गया कुछ क्या? पक्का, अब समझ आया। तो ये जो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो पेड़ पौधे जैसा है। वो है किस लिए? क्योंकि वो सूरज है और उसकी रोशनी यहां तक पहुंचती है, इसलिए है। लेकिन जिस दिन सूरज चला गया, रोशनी भी चली गई, ये बिल्कुल अंधेरे में रह गया। तो गुरुजी, जब मैं अच्छे कर्म करता हूँ या मैं अच्छी तरह से खुश में अपने शरीर से भी अनुभव को अच्छी सात्विकता से अगर अनुभव करता हूँ, तो वो भी तो एक तरीके से पंचतत्व की पूजा ही हुई। वेरी गुड। उसके लिए भी एक मार्ग बता देता हूं। आई विल गिव यू क्लैरिटी फॉर दैट ऑल्सो। देयर आर टू थिंग्स। जब मैं अपने शरीर को शुद्धिकरण करता हूं या ये करता हूं, ये कर्म योग में आया।
क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं इसको शुद्ध करने के लिए, राइट? तो ये क्या हो गया, मैं जो इसके पीछे लग के इसको शुद्धिकरण करता हूँ वो कर्म योग से हो गया। तो वो कैसा हो गया, इट्स लाइक ए गार्डन। करेक्ट। घर के अंदर जो गार्डन बनाते हैं उसकी तरीके से हो जाता। बट व्हेन यू डू ए गार्डनिंग इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे, और आप उसके अंदर क्या करते हो, चुन चुन के चीजें लगाते हो। हाँ, राइट? ये हो गया कर्म का गुलदस्ता बनाना, या तो कर्म का, व्हाट डू यू से दैट, गार्डन को क्या कहते हो हिंदी में? बागीचा। बगीचा, कर्म का बागीचा। तो कर्म के बगीचे में आप वहां पे एक माली बन गए और उस कर्म को सींचते गए और ठीक करते गए। ये हो गया कर्म मार्ग। दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जंगल है। सही है। क्यों जंगल है? सही है। क्योंकि उसमें कोई पौधा चुन चुन के लगाना नहीं पड़ता, वो प्रकृति आप हाथ उठा देते, बोला प्रकृति का है। और गार्डन नीड्स ए मेंटेनेंस, उसको नहीं लगता। फॉरेस्ट डजंट। और फॉरेस्ट में दोनों चीजें हैं, एक ऐसा है जो एक हिरन है और एक शेर भी है। चंदन और नीम साथ में है बस। लेकिन शेर, उसको मारा या वो बच गया, प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार अगर आप अपने आप को भक्ति के जंगल के जैसे परिणित कर दे, अगर इफ यू कन्वर्ट योरसेल्फ एज द फॉरेस्ट ऑफ डिवोशन, all the things will keep on continuing within that, but you are untouched by it. और भक्ति में वाओ, कोई कार्य नहीं। वाओ। तो बताओ, अब गार्डन बनाना है तो बनाओ। और आपने पूछा सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय क्या करना है? बस सरल। और जंगल हमेशा विशाल होता है, गार्डन कितना भी विशाल हो छोटा ही होगा जंगल के सामने। हाँ। और भगवान को कह दो कि मैं अपने जीवन को भक्ति का जंगल बनाता हूं, बाकी तू इसका मंगल कर दे। ठीक है। क्योंकि कर्म मार्ग में आप माली हो, भक्ति मार्ग में वो। तो कौन सा सरल? विच वन इज इजी? वही। बस बस सुमा जी ऐसे ही बैठे थे और वो बोलेगा चलो डन। तो जनेश जी, तो फिर गुरुजी ये ज्ञानी को मोक्ष का क्या मतलब हो गया? किसको? ज्ञानी को मोक्ष। ज्ञानी को मोक्ष का मतलब क्या हुआ? अब मैंने जो बताया आपको, उससे आपको ज्ञान हुआ कि भक्ति की जा सकती है। पक्का। हाँ, तो वो ज्ञान की जरूरत हो गई। वो ज्ञान के जरिए आपको भक्ति के बारे में पता चला और भक्ति करके आपको मोक्ष मिला। मतलब आज अभी ये कन्वर्सेशन में जो मैंने पाया और वो पाके जो मेरे अंदर से एक भावना क्षय होके निकल चुकी और जो नई भावना ने जन्म दिया, जो भाव जो कहीं मेरे खुद की बनाई हुई नहीं है, मुझे उसमें से मोक्ष मिला। वो हो गया ज्ञान। और जो मोक्ष जिसको मिला वो है भक्त। तो भी गुरुजी ये सारी भावनाएं का भाव कब खत्म होएगा? आप जब खेल खेलना बंद कर दोगे। ठीक है, ठीक है। Did I answer your question? Yes. चलो, थैंक यू जनेश जी। धन्यवाद। रेवती जी प्लीज अनम्यूट। और पता नहीं सुधा जी आ रहे हैं, हाथ दिखा रहे, मुझे शायद हाय या बाय कुछ तो बोल रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, हाथ उठा रहे, जा रहे हैं, आ रहे जा। चलो या रेवती जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। I have one question and I want to share something. Okay, so which one goes first?
The I'll ask dessert my or the main course? main course. Okay, go ahead. So I want to know, these lot of people keep telling us to ये पहनो, वो पहनो, ये stone पहनो, वो stone पहनो. Is there any relevance to that? I mean, I just want to know. I don't wear anything. So, I don't do देखो मुझे कितना कुछ पहना रखे हैं लोगों ने. So is लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान को भी पहना देते हैं. आप तो इंसान हो, क्या बात कर रहे हो? so, and by mistake, if you want something and then something is not happening right, they're very quick to say that ये पहना इसके लिए ऐसा हुआ. Okay. See, So- that Yeah. I will tell you in a very scientific way to understand that. Yes. कभी-कभी लोग पूछते हैं कि does it work, does it doesn't work kind of thing, right? Okay. ये देख रहे हो मेरे हाथ में एक लगा हुआ है. Why do I wear? किसी ने मुझे पूछा, कुशाल ने मुझे पूछा था कि आप क्यों पहन रखे हो? मैं I just said one thing. My father gave to wear it, so I wear it. Can you remove it? I said right away. However, we have to understand one thing. These things, when something is prescribed to you, जैसे हमने आपने देखा होगा जब हम कोई मंत्र की साधना करते हैं, यंत्र भी बनता है उसका. Why? All that means is everything is a vibration, right? When everything is a vibration, everything has a different vibrational frequency to it. Yes. Fire is also a vibration. It has a vibrational frequency of heat, light and burning capacity. वो उसका innate quality है. Right? अगर मैं अपना हाथ आग में रखूं, what will happen if I put my hand into the fire? It will burn it because it is innate quality. Have you ever found a fire that is cold? No, you cannot change it. It is innate quality. उसी तरीके से कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसके अंदर एक innate quality है. A stone, a particular stone has an innate quality of a vibrational frequency of certain level. Why did I give you the example of fire? Easy to understand. ये पत्थर में वो दिखता नहीं है, लेकिन वहां पे दिखता है आग में. So this also has a frequency or not? You say, how can you say that there is a frequency in it and a different frequency in it? See, because of the different frequency, it has a different shape, size and color. Yes or no? So it has a particular frequency to it. And when I add that frequency to one thing, have you ever played those G.I. Joe cars? Yes, I told G.I. Joe because now they have other cars, Hot Wheels and all those things. If you see the tracks of it, in the tracks, at times they put something called as the speed maker, accelerators, right? What do? They put it, and when it comes there, it just increases the speed. Why? Because it has the innate quality to push. Similarly, all these things that we think of, a stone ho gaya, mala ho gayi, ye ho gaya, they have an innate quality to that. So what they can do is, if my life is going very slow, might be it is a propeller. So it will propel me to that realm. So it will work. Might be I am going too fast. It is a stopgap arrangement. So it will stop. It will slow you down. Yeah. So they work in the world. हर इस रेल्म में, पृथ्वी के रेल्म में वो सारे चीजें काम करेंगी क्योंकि उनका एक उनके अंदर क्वालिटी है. Okay. Thank you. Okay, I want to share something. Okay. I actually So I the mean- desert. Parma desert, yeah. It's really sweet and nice. So it is a desert. So last week of 10 days back, I have two pets. Everybody knows that. So they were unwell. They were quite unwell. Suddenly they had tick fever and was very, very upset. So we obviously medicated them. And I was one night, I just kind of prayed and slept. And I said, no, everything's going to be fine. I think what you were talking about, bhakti and faith and belief, it is so paramount. It is so paramount that night when I was sleeping,
I had said this earlier also, that I had seen a vision of Swami Samartha sometime. Samartha. I mentioned that. You know that my room was locked. I mean, at night. Suddenly my dogs started barking. They don't bark if they don't hear or see. So I thought maybe my little one has come back, but he was sleeping in his room. I didn't even open the door. They kept barking. I went off to sleep. I said, chalo, forget it. I was very stressed and went off to sleep because they were unwell, but they were barking. I actually felt I get goosebumps even when I'm talking about it now. I felt somebody wake me up and put their hand on my head and say, just, you know, that phrase of Swami Samartha, "Bhiu na kosmi tuja pathi aahe." And in the flash of a second, these dogs were barking. There was no reason for them to bark. Nobody was in the room. We were all in I was in one place. I think this is just so divine. And I really feel that I've just become calm after that. And I think the witness to my calmness is actually Appa Rauji, because otherwise I used to keep calling him thrice a day. Now he must have not heard from me for the last 15 days. I have not called him because I think I've just become very calm. So I think there's something dramatic happened that day. And you play a very crucial role in my, like you said, propelling towards this phase of my life. So I really want to, with all my, everything in me, I just want to do my pranam to you. And I think I'm very blessed that I am here and I have been able to experience this divine thing that I have experienced. So thank you so much for just getting me here. Thank you, Revati ji, for both. You see, when you add a little bit of sweetness, even the desert that is deserted tastes good. And my dogs got okay. They are okay now. So they are fine now. So thank you, Revati ji. I mean, you know, I think Swami Samar just walked into just came there and touched me, blessed me, and went away. Why not? I don't know. Maybe it happens. It's happened to me. I don't know. I want to. No, you don't know the story of other people in the group. No, I've heard a lot of stories, but it's happened to me. You are able to tell that upfront. They don't. So that's a very common thing for this entire group here. Okay. And that same dialogue, you know, "Bhiu na kosmi tuja pathi aahe." It's just amazing. Maybe I'm thinking a lot also about that. So, no problem. If you are thinking a lot about worldly things, that's a trouble. If you are thinking too much about the divinity, what's the problem in that? No problem at all. Thank you. Okay. Thank you so much, Revati. Oh, sorry. Okay. So, Sudha ji, finally. इस बार हाथ ऊपर ही है. मुझे लगता है कि जो सवाल पूछने जा रहे हैं उसका उत्तर आ जा रहा है, वो हाथ नीचे कर दे रहे, फिर सवाल आता है, फिर प्रणाम. आज गुरुदेव इतने अच्छे सवाल थे कि उनको मनन करने की जरूरत है. तो मैं अपना क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रही थी. वो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी शायद 1 लाइन का ही होगा, लेकिन मुझे इसका जवाब आगे देना है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी. मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सूतक के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? कोई यहाँ बैठा है, ये जैसे कहते हैं सूतक लगा है 15 दिन का, 20 दिन का. ओके. हाँ, कोई बाहर रह रहा है, कोई दूर रह रहा है, तो ये साइंटिफिक रीजन क्या है? उनसे कहा जाता है 3 दिन ऐसा नहीं करना या 10 दिन ऐसा नहीं करना, वो जानना चाहती थी. ओके. एक स्टेटमेंट है, your willingness to have a kid is the reason for somebody's death. आपने कहा ना एक ही स्टेटमेंट ना. हाँ. So your desire to have a kid is also the reason for somebody's death. अब समझिए इस बात को, क्योंकि एक आत्मा का जो ट्रांजिशन फेज में जाते हैं,
हम सूतक का बात क्यों करते हैं? एक मूतक होता है, एक सूतक होता है. आई डोंट नो व्हाट इज द अदर टर्म दैट यू यूज. तो ये जो सूतक लगता है, वी डोंट नो हाउ मच टाइम डिड इट टुक फॉर दैट सोल टू रीच इनटू दिस बॉडी. हो सकता है उसकी क्रियाएं चल रही हैं और ये आ गया. उस वजह से, बिकॉज अगेन देर इज अनदर एंटायर phase how a life comes into as a kid. उसको अगर हम समझेंगे कि कौन कौन से रास्ते से वो आता है, because it is coming from so many realms. अभी वो सूतक करने का रीजन ये है कि उसकी शुद्धिकरण नहीं हुई. तो वो शुद्धिकरण जब तक नहीं होती, जैसे कि आप ये सूतक लगाने का रीजन क्या होगा, उसमें देखिए वो कहते हैं कि पूजा नहीं करना, घर में भगवान को जाके नहीं छूना. ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस कम इनटू प्ले ना. यही तो रेस्ट्रिक्शंस है, और क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन, ये तो यही है. रिस्ट्रिक्शन. तो वो कहते हैं कि अब ये जो आया और एक चीज आपके घर में एक एडिशन हो गया आके, वो चाहे आपके घर में हो, आपके रिश्तेदार, मतलब आपके क्लोज रिलेशन, मींस इट इज अ फैमिली ट्री. दैट मींस a new thing has been added to your family now, and you don't know what kind of energy this new thing is. वो कैसी ऊर्जा है और वो किस किस चीजों से आई है. so what do you do here? वो आप उस उतने दिन तक का सूतक लगाते हो, that let that energy get pass into our home also. वो जो एनर्जी आया है उसको सेटल होने दो. और साथ ही साथ even there is actually ऐसे नहीं बताया जा सकता. if I have to tell you, it will take an entire session, not one line. तो सुधा जी एक काम करते हैं, आपको अभिमन्यु नहीं बनाते. ठीक है. I will take an entire session on this. ये सूतक क्यों लगता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत गहरा कारण है. अगर आप समझोगे कि कैसे आता है, चंद्रमा को कैसे छूता है, सूर्य को कैसे छूता है, फिर ये ग्रह नक्षत्र को कैसे छूता है, वो छू के यहाँ पे कैसे आता है, और वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है लाइफ में, वो सारी चीजें हैं उसके अंदर. अच्छा तो हाँ जी, मतलब एक चीज और है, जैसे ये भी कहा जाता है कि जो मतलब बिल्कुल आपका ब्लड रिलेशन है, या फिर 2 पीढ़ी बाद है, 3 पीढ़ी बाद है, सबके अलग दूसरे नियम बनाए गए हैं. पहले तो ये तो सब आसपास रहते थे, ज्यादातर डिवाइड हो गए, इधर रह रहे, ठीक है. तो एक मोटा सा चीज समझ में आती थी भाई, जैसे मोटी चीज समझ में आती थी कि भाई किसी के अब घर में कोई ऐसी अनहैपनिंग घटना घटी है, तो सब लोग एक साथ बैठ गए, मना लिया उन्होंने. अब कोई यहाँ रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, कोई फलाना जगह रह रहा है, और सबसे कहा जाता है ये नहीं करना है. उसका रीजन मैं जानना चाहती थी. वो तो जो प्रथा चली आ रही है उसी प्रथा से चल रहे. अब आप बताओ, आप बस में या फ्लाइट में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, क्या आपको पता है कि किसके घर में किसका मृत्यु हुआ है या किसके घर में किसका जन्म हुआ है? उसको छू के तो आते हो, फिर पूजा करते हो. तो ये जो विधियां थी वो प्राचीन युग की हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे एक कारण है. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डिस्कार्ड दैट ऑल टुगेदर. लेकिन क्योंकि उसको समय लगेगा मुझे समझाने के लिए, और आई थिंक लाइक ए एंटायर सेशन कैन बी क्रिएटेड ऑन दैट. अभी मैं जो भी बोलूंगा इट विल बी जस्ट लाइक ए हाफ बेक्ड. वो मैं नहीं चाहता किसी को देना, ठीक है, क्योंकि हाफ बेक्ड आंसर एंड हाफ बेक्ड केक दोनों ही तबीयत के लिए खराब है. सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टेक ए सेशन ऑन दैट सून देन. ठीक है, ठीक है. और रश्मि जी हैं क्या अभी? नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा, चंद्रप्रकाश जी आ गए, चलो ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग टू उज्जैन, महाकाल एंड ओमकारेश्वर. अगले हफ्ते शायद मैं ये 2 जगह जा रहा हूं. चंद्रप्रकाश जी, अनम्यूट प्लीज. प्रणाम महाराज जी. प्रणाम. आपका आखिरी जवाब से मेरा पहला सवाल है. मेरे आखिरी जवाब से
मेरा पहला सवाल है, अच्छा। आप उज्जैन महाकाल बोल रहे हैं। मैं तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, आपके सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ संडे के या वेडनेसडे के, पता नहीं मेरा समय नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, पता नहीं। नहीं नहीं, अपने आप को कोसना बंद कर दो भाई, इसीलिए यूट्यूब है। दूसरा, परसों मैं कुछ पार्सल लेने गया था ढाबे में, घर के लिए डिनर। क्या लेने गए थे? डिनर पार्सल लेने गया था। अच्छा, डिनर पार्सल लेने गए थे, ओके। हाँ, काउंटर वाले को मैंने पैसे पे किया, हम्म। सिर मेरा झुका सा था, उठा सामने फोटो, फिर बाजू सोफे पे ऑर्डर का वेट कर रहा था, कोई फोन हाथ में पकड़ा, फोन खोला, वही फोटो। दुकान के पास किसी को ऑडियो सिस्टम दिलाने जा रहा हूँ, वही गाने बज रहे हैं। ऑफिस में कोई कस्टमर आ रहा है, वही रिंगटोन बज रहा है। रास्ते में कोई गाड़ी दिख रही है, विभूति दिख रहा है, तिलक दिख रहा है। कोई कार खड़ी रह रही है, विभूति तिलक रखा है। किसी के घर में किसी को मिलने जा रहा हूँ, टीवी पे कुछ सीरियल चल रहा है, सामने हर जगह महादेव दिख रहे हैं। एक्चुअली मुझसे बोलना क्या अच्छा है शिव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। 24 घंटे में को डेली ये झटके लग रहे हैं। मुझसे बोलना क्या चाह रहा है, मुझसे करवाना क्या चाह रहा है, मैं हर बार इमोशनल हो जा रहा हूँ। परसों किसी को ऑडियो सिस्टम दिलाने गया था, जो मैंने गाना गाया था हर हर शंभू, 10 दिन कंटिन्यू वही गाने पे सब लोग ऑडियो सिस्टम भेज रहे, चारों तरफ वही आवाज बज रहा है। किसी को दिलाने गया तो जब बाजू गाना बज रहा है तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ पैर हिलने लग रहे, नाचने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वांट टू नो दिस। आप जिसे पकड़ने गए थे उसने आपको पकड़ रखा है, और क्या हो सकता है। देखो, जो लोग बुलेट चलाते हैं ना, उनको एक चीज पता होगी, जब तक आप बुलेट चलाते हो तब तक ठीक है, जिस दिन बुलेट आपको चलाती है ना, आपका हाल बेहाल कर देती है कि नहीं? क्योंकि बुलेट आपको चलाएगी मतलब वो बंद हो गई और आप उसको लेके चल रहे हो, द वेट इटसेल्फ इज इनफ। तो वैसे ही हो गया, आप उसे ढूंढने निकले थे, शायद वो आपको ढूंढ लिया है। यू शुड बी हैप्पी। इफ यू आर क्राइंग राइट नाउ व्हाइल क्लोजिंग द कैमरा, डजंट मैटर, क्योंकि जो आंसू उसके ध्यान में बहे, वो आंसू आंसू नहीं हो सकते। वो वही गंगा जल हो सकता है जो भक्ति से अपने रज को धोले। सो मैं तो कहूंगा यू आर ब्लेस्ड, सो बी हैप्पी अबाउट दैट। खुश रहो, मस्त रहो, और क्या। वो बोलना क्या चाह रहे हैं मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। तो बोले चंद्रप्रकाश कैसे हो, पूछ रहे आपसे, और क्या। अच्छे हो ना भाई, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और क्या चाहिए बोलो। शायद कुछ देने वाले हैं आपको, और क्या। पता नहीं। परसों आपका इंस्टाग्राम पे आपका या महाकाल का कुछ मैंने कोटेशन पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो आपकी परीक्षा ले रहा है वो खुशियां भी आपको उतने ही देगा, खुशियां भी वही देगा, ऐसा कुछ पढ़ा, अच्छा लगा वो पढ़ के। वो भी उसी का दिया हुआ होगा, और क्या। पता नहीं, वो आंसर भी उनका ही मिला, क्वेश्चन भी उनका ही था। जो तेरी परीक्षा ले रहा है वो खुशियां भी तुझे अच्छे खुशियां ज्यादा खुशी देगा। मैंने बार ऐसी कोई विभूति देखता हूँ बस। सांप सीढ़ी वाला सुने कि नहीं आज का? नहीं, देर से अटेंड किया मैंने, जो बारिश गिर रहा था थोड़ा। तो एक काम करो, अभी YouTube पे फिर वापस जाके सुन लेना उसको, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी। नहीं तो कुछ लोग बोले क्या रात के 10:30 बजे बैठ के सांप सीढ़ी चल रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं चंद्रप्रकाश जी, बस वो ये कहना चाहता है कि यू आर नॉट अलोन, and very soon I am going to talk about the love story of Ram and Ravan. सुनना उसे एक बार, शायद उसमें भी आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो चंद्रप्रकाश जी मस्त रहो, जैसे मस्त रहते थे ऐसा ही मस्त रहो, नाचो गाओ, क्या करना है, हो जाएगा सब। मेरा बेटा आके बोल रहा सुखी बाबा। सुखी बाबा, और क्या चाहिए। देखो शिव जी इसके रूप में आके बोल रहे हैं मेरे को, क्या बोले समझ में नहीं। वो बटुक है। हाँ, हमारा बटुक है। आपके घर में एक बटुक है, हमारे घर में एक बटुक है। हर घर में है।
कहाँ कहाँ दृश्यमान है, कहीं कहीं दृश्यमान नहीं है तो हर जगह। बस लोग कुछ भी मेरे को काम बोल रहे हैं, बस आपका वो 7 लेटर्स वाला एक याद रख रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ ही चूजन मी टू सर्व हिम टू देम। बस वही के भाव से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अभी भी चलो। लोगों के 10 कुछ काम करके आए। करते जाओ। ओके जी चलो, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद चंद्रप्रकाश जी। रश्मि जी, नमस्कार। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शायद बम बम बोले। हाँ, दोनों एक ही साथ बोल दो, गुस्सा है तो शांत भी हो जाए। चलो, शायद वही है। अगले हफ्ते शायद मैं आऊंगा ओमकारेश्वर और महाकाल दोनों से मिलने के लिए। अब देने जा रहे लेने जा रहे वो पता नहीं लेकिन जाएंगे। सो प्लान्स आर देयर। अब पता चलेगा, कल 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। ये मत बोलिए, देखिए राजन जी कैसे देख रहे मेरे तरफ। सुधा जी उनको तो भी बुला और लेंगे ना। चलो, तो वही आपसे हरि भाई बात करेंगे शायद। आप कहाँ पे हो, कितने दूर हो, वो शायद बातचीत चलेगी। काम कुछ नहीं था लेकिन वैसे ही बन गया, तो अगर वो बुला लिए तो चले जाएंगे, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैंने भी कह रखा है कि वृंदावन, सोमनाथ, मथुरा, ये सब लाइन में है, शायद इसी साल हो जाए, क्या पता। हमने तो अपना बैग रेडी रखा हुआ है, बस बुलावा जिधर से आए चलो उधर चले। तो रश्मि जी आप ही बोल रहे थे ना कुछ दिन पहले। महाकाल तो जिससे बुला ले तो बस फिर आना ही आना है। सही बात है, महाकाल जिसको बुला ले उसको तो आना ही आना है। मौत से किसको किसने रोक पाया है। तो हुआ तो आपसे वहां पे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। हरि भाई इज सेइंग आई एम बैक। ओके, सो हरि भाई बीच में जाके पूजा करके खाना भी खा के आ गए। सो थैंक यू एवरीवन। आई बिलीव लाइक दिस वाज अगेन वन मोर, जैसे जनेश जी ने कहा, इट वाज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन, इट बिकेम लाइक ए सेशन इटसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद ये खुशखबरी सुनाने के लिए। उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, उसके पीछे हरि भाई का हाथ है। तो हरि भाई, रश्मि जी को मैंने वही बताया कि अगले हफ्ते या महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। यस यस, आप ही के नजदीक आ रहे हैं, आपके एरिया में। उनका नेट चला गया शायद, वो डिस्कनेक्ट हो गए उनका। रश्मि जी आप कितनी दूर है? वो आप फोन पे बात कर लो। अच्छा चलो ठीक है। उनका कट हो गया शायद। ओके, सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन आंसर। सो विद दिस, वो आप ऑलरेडी उनसे बात कर लो एक बार, ठीक, बिकॉज लेट अस डिस्पर्स फॉर दिस मोमेंट, येट कनेक्टेड एवरी टाइम। सॉरी ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। नहीं कोई बात नहीं, वो हरि भाई आपसे बात कर लेंगे कैसे भी। ठीक है, जी बिल्कुल। चलो, सो थैंक यू बहुत एवरीवन। बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे लिए। चलो, so thank you everyone for being here, and what all we discussed today, may that take you
और गिव यू दैट नॉलेज और दैट विजडम। शायद वो आपको वो ज्ञान दे ताकि आपका ध्यान लगे और आपके ध्यान से आपको वो भक्ति मार्ग से आप उस देवता को प्राप्त हो, जिसे प्राप्त करने के लिए शायद आप हर तरीके की तपस्या कर रहे हो। तपस्या खाली एक पैर पे खड़े होकर नहीं की जा सकती, तपस्या कभी कभी रसोई में भी की जा सकती है। तपस्या केवल सर के बल खड़े होकर नहीं की जा सकती, तपस्या शायद संसार के कार्य करते हुए भी किए जा सकते हैं। तो आपका हर एक कार्य कर्म ना बन के तपस्या बन जाए। अहम ब्रह्मास्मि।